یہ بتائیں آپ متعارف ہیں آپ ان کا آپ کے ساتھ؟ ہاں جی یہ بتائیں نا. یہ حامد ملی صاحب ہیں، وہ واٹر پنجاب واٹر کونسل کے یہ اچھا کرتا دھرتا ہے پانی سے متعلق. پانی سے متعلق، اور پانی ہی زندگی ہے. پانی زندگی ہے بالکل. ان سے پوچھیں ذرا ملی صاحب بتائیں ذرا صورتحال کیا ہے؟ کیونکہ پڑھے لکھے لوگوں میں عام آدمی کو تو شاید نہیں، لیکن جو پڑھا لکھا طبقہ اس ملک کا وہ بہت کنسرنڈ ہے کہ ہمیں ہونا بھی چاہیے پانی کی قلت کا، بلکہ قحط کی حد تک کچھ لوگ بات کرتے ہیں. موجودہ حالات میں تو بہت پریشانی والا عالم ہے. کمی ہو رہی ہے پانی کی کیونکہ بارشیں نہیں ہوئی پچھلے 1 سال میں. چلیں یہ تو ایک موسمی اس کا پرماننٹ حل کیا ہے؟ مطلب یہ تو موسمی ہو گیا نا، کسی سال بارشیں زیادہ ہوئیں کسی سال کم ہوئیں. دنیا بھر میں اس مسئلے کا حل لوگ ڈھونڈے بھی ہیں اور کر بھی رہے ہیں. نہیں مثلا ابھی آپ نے پڑھا ہے کوئی آسٹریلیا میں سڈنی میں انہوں نے بہت بڑا ایک پلانٹ لگایا ہے سمندر کے پانی کو، یہ ریورس آسموسس کا پروسیس جو بھی ہے. میں تو ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں، تو الحمدللہ سمندر تو ہمارے پاس بھی بے شمار ہیں. کیا پرابلم کیا ہے؟ نہیں وہ مہنگا بہت پڑتا ہے نا جی. وہ پینے کے لیے تو آپ یہ اخراجات اتنے کر سکتے ہیں لیکن زراعت کے لیے نہیں کر سکتے. یہ جو ہمارے صوبوں کے درمیان سلسلہ چل رہا ہے پانی صوبوں کے درمیان جو معاملہ ہے نا، حالانکہ واٹر کارڈ تو موجود ہے، اس کے باوجود واٹ از دا پرابلم؟ دیکھیں ہم نے مسائل کو حل کرنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی. اللہ آپ کا بھلا کرے. آپ نے تو مطلب سارا کچھ ہی سمجھ جی ہم نے معیشت بھی آ گئی، دیکھیں سیاست بھی آ گئی، تھوڑا سا صحت بھی آ گئی، تعلیم بھی آ آپ گئی. اس کو تھوڑا سا اس نظر سے دیکھیں نا کہ ہمارے پاکستان میں حکومتوں کے وہ دور گزرے ہیں جن کو اپنی لیجٹمیسی ڈھونڈتے رہے وہ 10-10 سال، اور جو جائز تھے وہ 2-2 سال کے دھکے کے بعد جاتے رہے. اب مستقل نہ حکومت رہی، جب حکومت بنتی ہے تو وہ حکومت اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ مسائل حل کریں. یہ مسائل آہستہ آہستہ گمبھیر ہوتے جائیں گے، اب بھی گمبھیر ہیں، مزید بگڑتے جائیں گے کیونکہ آپ ان کا حل نہیں ڈھونڈ رہے. اور جو حل آپ نے ایک عارضی حل 1991 میں ڈھونڈا اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا. اس کی 14 شقیں ہیں، اس کی ایک شق نہیں. آپ کس حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ ایک تو جو چل رہا ہے معاملہ پنجاب اور سندھ کے درمیان پانی کی تقسیم کا، آپ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ نہیں اوورآل جی اس جو معاہدہ تھا وہ ایک بڑے خلوص نیت سے سب صوبوں نے بیٹھ کے اس پر دستخط کیے تھے. تو اس کا مقصد تو یہ تھا کہ ملک میں جو بھی پانی کے مسائل ہیں ان کی ترقی کے لیے، کیونکہ زرعی ملک ہے، ہماری ساری معیشت زراعت پر منحصر ہے، تو پانی تو وائٹل انپوٹ ہے زراعت کا. تو پانی کے لیے ہمیں کوئی دشواریاں نہ ہوں. انپوٹ سے میرا خیال ہے ساری ہی بہت وائٹل ہیں، یہ بیسک ہے. اس کے بغیر تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا، یہ پانی کا تو بنیادی عنصر ہے، اس کے بغیر تو صاحب جو معاہدہ موجود ہے اس کے مطابق چلتے رہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ جی وہ معاہدہ ہوا تھا کہ آپ ڈیم بنائیں گے. ڈیم آپ نے بنایا نہیں تو معاہدہ کیسے چلے؟ وہ تو حکومتیں چھوٹے آپ کے نزدیک یہ ایک اتنا اہم اور کروشل ایشو ہے، آپ کے نزدیک اس کا کیا حل ہے؟ 1 2 3 کر کے کوئی 1 2 3 سٹیپس جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں. دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں فوری طور پہ ہمیں اگر اس ملک کی معیشت کو اور اس ملک کے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے تو ہمیں فوری طور پہ کالا باغ ڈیم کی تعمیر شروع کر دینی چاہیے. یہ تو بہت بڑا کنٹروورشل مسئلہ ہے. جی کنٹروورشل کس نے بنایا ہے؟ دیکھیں ہم کنٹروورشل تو آپ کا کشمیر بھی آپ چھوڑ رہے ہیں. حکومت نے تو آتے سب سے پہلا میری گزارش آرگومنٹ ان کا بیسک میری گزارش سن لیں کہ کشمیر بھی کنٹروورشل تو آپ کا چھوڑ تو نہیں دیا. کنٹروورشل تو آپ کا نیوکلیئر ایسٹ بھی ہے. کنٹروورشل تو آپ کے بہت سی پالیسیز ہیں. کنٹروورشل تو آپ کا جو افغانستان کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بھی ہیں. کالا باغ ڈیم کنٹروورشل نہیں رہا. حکومت نے آتے ہی پہلا اعلان ہی یہ کیا تھا کہ یہ نہیں بنے گا. یہ حکومتوں کو اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں آپ نے باہر سے آر پی پیز کو پیسے دیے ہیں، آئی پی پیز کو پیسے دے رہے ہیں، تیل کا امپورٹ بل بڑھا رہے ہیں. کہاں سے آپ کے خون پسینے کی کمائی سے جائے گا؟ 1 روپے کا یونٹ بجلی گھر پہ نہیں پیدا کر رہے اور 10-10 روپے کا بنا کے آپ عوام کو دے رہے ہیں. نہ آپ کی انڈسٹری کمپیٹیٹیو رہے گی. پرابلم یہ ہے نا باقی صوبے نہیں مان رہے نا، اسی لیے تو یہ ہو گیا.
नहीं, तो लीडरशिप का क्या मतलब है? इस कौम के मुश्किलात का या मसाइल का हल, लीडरशिप का ये मसला है कि जो मसला बड़ा है उसको मत छेड़ो। आमिर मलिक साहब, रोना तो वही है जो बात आपने पहले कर दी है कि इनको तो अपने सर्वाइवल की जंग से ही फुर्सत नहीं मिलती, इन्होंने मसाइल और इश्यूज को एड्रेस तो करना हसन साहब, मेरे पास तो एक ही हल है, ये बार बार हुकूमतें बनाने से कभी जमहूरियत आ गई, कभी वो एक बादशाह ना बना ले हम जो 25-30 साल हल तो मेरे पास है, लेकिन अफसोस मैं बयान नहीं कर सकता। अच्छा, बादशाह तो मेरे रहे, पास है, हल है तो हसन साहब, ये 10-10 साल के बादशाह ही तो रहे। लोगों से मैंने वो डंडे नहीं खाने, क्योंकि वो फैशन में नहीं है ना वो। नहीं पक्का बादशाह बनाए जो अच्छा, मुझे बताएं कि इंडिया जो धड़ाधड़ डैम बना रहा है, जी जी, उसका कोई बैनुल अक़वामी, कोई ग्लोबल लेवल पे कोई चेक नहीं है उसके? कोई लेकिन जी इंडिया असूल, कोई कवायद, कोई जी, ज़वाबित? देखें उन्होंने जब हमने 1960 में उनके साथ ट्रीटी की तो हमारे लोग, ये जो अयूब खान साहब जी, ने अयूब माशाल्लाह खान जो साहब झक मारी ने थी, जो तोहफा दिया हमें 3 दरियाओं का उनको, और हमें 3 सूखे दरिया रख लिए और 2 हमने टोबे बना लिए कि जी इधर पानी रुकेगा और वो हम यूज करेंगे और उसके आगे मसले होगा। अब वो जो 3 दरिया आपने दे दिए, रावी सारा सूख गया, खत्म हो गया। झेलम दरिया रसूल के नीचे सूखा हुआ है। चनाब जो है वो उसका हाल देख लें, 6000 क्यूसेक दरिया है, मेरा ख्याल त्रिमू तक नहीं पहुंचता इस वक्त। अच्छा, डैम्स भी आपके सिल्ट से भरते जा रहे हैं? हर साल 1% आपकी डैम कैपेसिटी जो है ना वो कम हो रही है, क्योंकि सिल्टेशन एक नॉर्मल प्रोसीजर है। जो 60 की ट्रीटी हुई थी ना, उसमें जो हमने उनको रायत दी ना उसमें कि आप अपने इलाके में यहाँ बिजली पैदा करने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बना सकते हैं, ये उस ट्रीटी का हिस्सा है। अब उसमें कबाहत ये है कि हाइड्रो पावर स्टेशन बनाते हुए उसकी हाइट उनको मेंटेन करनी पड़ती है और पीछे पानी खड़ा करना पड़ता है। अब करते वो ये हैं कि जब पानी कम हो तो वो पानी रोकना शुरू कर देते हैं, जो कि मायदे की खिलाफत, जो मायदे की खिलाफत है। इंडियंस जी, इंडियंस। इसका बंदोबस्त क्या है? उसका बंदोबस्त एटमी बंदोबस्त के अलावा? जी, एटमी बंदोबस्त देखें जी, वो तो आखिरी मेरा ख्याल हरबा है जो इस वक्त हमारे पास हाल है। एक तो गुफ्तो शनीद है, फिर उसके तहत एक न्यूट्रल एक आर्बिट्रेशन के लिए दुनिया भर से चूज किया जा सकता है एक अंपायर जो उनको बताया कि ये आप गलत कर रहे हैं। फिर देखिए, एक हमारे जो जितना दुनिया भर में डिप्लोमेट्स फैले हुए हैं, जितनी एम्बेसीज फैली, ये कर क्या रही हैं, क्या कर रही है? साल से आपके सामने है। तो इंडिया ना वो आपकी ट्रेड को कोई लेकिन जी, ये उनका काम है। ना वहाँ जो मौजूद पाकिस्तानीज हैं उनको कोई ना facility उनका नहीं है। कोई पुरसाने हाल है वहाँ, जो ये तो आता उनका है काम है ना जी हसन निसार साहब, ये लंबी कि चौड़ी वो- तनख्वाहें फाड़ते हैं वहाँ बैठ के। कि वो डिप्लोमेसी को एक्टिव करें और इंडिया को कॉर्नर करें। वो तो एक सिक्योरिटी काउंसिल की सीट ढूंढ रहा है, इधर दिखाएं कि बांग्लादेश का पानी रोका हुआ है, पाकिस्तान का पानी रोका हुआ है, पॉवर्टी बढ़ेगी, इंटरनेशनल क्राइसिस। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में अगर पॉवर्टी बढ़ेगी तो उसका फॉल आउट क्या होगा? रीजन में फॉल आउट नहीं होगा क्या? पहले जो कुछ हो रहा है उसमें से दुनिया को सबक नहीं सीखना चाहिए? अच्छा, ये मुझे ज्यादा बताएं होगा कि हंगामी बुनियाद हंगामी पर बुनियाद पर मैस है। नहीं लेते और आने वाले 10 साल भी हम ऐसे ही जाया कर देते हैं पानी के इशू पे, तो 10 साल बाद की क्या तस्वीर बनती है, आपको दिखाई देती है? देखिए जी, एक तो आपको पीने के पानी का मसला होगा। मैंने तो काम माशाल्लाह पहले ही बोतलों पे लग गई है जी, महंगाई बहुत ज्यादा हो जाएगी क्योंकि आपकी बिजली और पैदावार का जो ज़रूरी पैदावार है उसकी लागत काश्त बढ़ जाएगी, लागत बढ़ जाएगी, उसकी लागत बढ़ेगी तो वो महंगी मिलेगी, तो कम्पिटिटिव नहीं आ पाएंगे, आपकी एक्सपोर्ट्स रुक जाएंगी। तो मैं तो समझता हूँ कि फौरी तौर पे इस पर सोच विचार तो हो चुकी, अब तो अमल दरामद करने का वक्त है। अगर हुकूमत, जो भी हुकूमत है या आइंदा आएगी, अगर तो कोई विजनरी लीडर है तो इस मुल्क को इस जंजाल से निकालेगा। जो है वही करे, आइंदा का इंतजार क्या करें? हम तो कहते हैं यही करें, हाँ यही करें, लेकिन जो जिस तरह के हालात है नजर आता है कि ये तो नहीं करेंगे, ये नहीं, जिनके पास तमाम इख्तियार। पानी का ऐसा तो मसला शदीद नहीं हो गया कि हम चाय भी नहीं पी सकते? नहीं जी, इतना तो नहीं गंभीर, ये ऐसा तो नहीं। तो बस फिर चाय जितना अभी पानी एक तो है नहीं, फिलहाल नहीं है, चाय जितना पानी है। मैं तो चाय बनवा दूं, चाय भिजवाओ यार। जी हामिद मलिक साहब, आप अब बताएं, कंक्लूड करें इसको, पानी वाले मसले को। पानी कंक्लूड तो नहीं हो सकता वैसे,
لیکن آپ بتائیں کہ کیا ایک تو میں نے پہلے گزارش کی ہے جی جو جلدی بھی ہو اور سستا بھی ہو ڈیم سکے۔ کے بغیر گزارا نہیں ہے، جو ہمارا سسٹم ہمارے پاس بچ گیا نا جی 1960 کی معاہدے کے بعد، اس میں ہم مجبور ہیں کہ ڈیم کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ ایک تو ہمارا جو پہلے تو اس میں کنسنسس کیسے کریٹ کریں؟ کنسنسس کی ضرورت ہم نہیں ہے، لوگ تو متفق ہوتے نہیں کسی بات دیکھیں جی اس میں کنسنسس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے انٹرنیشنل ٹریٹی کے تحت ان کو پانی دیا ہوا ہے 3 دریاؤں کا، جن علاقوں کا چھینا گیا ہے ان کو کنسنسس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس ٹریٹی کے اندر باؤنڈ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے ڈیمز بناتی جائے تاکہ ان کو پانی مہیا ہونے میں دیر نہ ہو۔ جو انڈیا کے ساتھ معاہدہ وہ انٹرنیشنل خان صاحب ٹریٹی کے ہے۔ زمانے میں ہوا تھا، ہاں جی جی، اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے یا کیا نہیں، اس معاہدے کے تحت گورنمنٹ آف پاکستان باؤنڈ ہے کہ اس علاقے کو جو علاقہ محروم ہوا ان پانیوں سے، اس کو پانی کی سپلائی مینٹین کرے۔ کیسے؟ تھرو کیسے؟ اب ڈیم، تب بھی یہی فارمولا تھا کہ ڈیمز بنا کر پانی ٹرانسفر کیا جائے گا، اور کیونکہ اس کی کیپیسٹی کم ہوتی جا رہی ہے، اتنی کیپیسٹی کے اور بنتے جانے چاہیے۔ ہاں، یا تو پھر وہ دریا اس کا کھلوائے۔ مطلب ہے اس کا اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود انڈیا ایز سچ، جو کرنا ہے آپ نہیں کرنا ہے۔ جی نہیں، بالکل اگر آپ نے ڈیم نہیں بنانے، السلام علیکم۔ آپ انڈیا کے ساتھ سمجھوتا کر کے وہ دریا کھلوائیں۔ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب، کیا حال چال؟ آپ سنائیں جناب؟ ایکسرسائز وغیرہ کیا کریں، آپ کیا گڈی نہیں گڈی، یہ شیخ سلیم صاحب کو جانتے ہیں آج کل کون نہیں یہ جانتا؟ سیکرٹری جنرل ہیں کائٹ فلائنگ ایسوسیشن کے، یہ وہی ہے جو ہائی کورٹ میں گئے تھے ریٹ میں حکومت کے خلاف۔ نہیں، ہم نہیں گئے تھے شیخ سلیم صاحب، جی مجھے ہم نہیں گئے تھے جی۔ اچھا اللہ حافظ۔ اچھا جی، بہت مہربانی ملی صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ ان کے سامنے پانی کی بات نہ کرنا ہے، یہ گڈی والے ہیں، گڈی والے، وہ پانی سے گڈی بھیگ جاتی ہے۔ نہیں، وہ کیس ہار گئے نا۔ نہیں، کیس تھا ریگولر گائیڈ لائن کے لیے، وہ ریٹ مسترد ہوئی ہے۔ اچھا، ہم تو بات کر رہے ہیں یہ مطلب ریگولر گائیڈ، شرما کیوں رہے ہیں؟ نہیں، ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں جو پنجاب اسمبلی نے 15 دن کا بل پاس کیا ہوا ہے، جس میں سال میں 15 دن ہمیں اجازت ملتی ہے۔ شیخ صاحب باقی چھوڑیں، میں آپ کی پرسنالٹی سے بہت متاثر ہوں۔ آپ کی مہربانی ہے۔ ہیں آپ بہت کیوٹ ویسے۔ ابھی آپ آپ کا نے تعلق اندرون شہر سے ہے؟ جی اندرون شہر سے۔ شخصیت آپ کی بول رہی ہے کہ تعلق اندرون شہر بہت سے۔ شکریہ جی۔ ابھی آپ نے نا جسم کو ذرا کنٹرول کرے، 2 ماہ میں پتنگ بازی کی اجازت دلوا دے، اٹ ول بی اوکے اچھا، انشاءاللہ۔ وہ کیسے ہیں؟ سر پتنگ بازی جب ہم جاتے تھے نا تو تقریباً 3-4 کلومیٹر ویسے ہی ہم چل لیتے تھے، پیش کرنا، پتنگ تو اتارنا، اس کو آگے جا کے پھر واپس لے جانا۔ ہوتی ہے نہیں، ہم تو گراؤنڈ میں کرتے تھے جی، آپ گراؤنڈز میں کرتے گراؤنڈ میں ہیں، کرتے تھے۔ آپ چھتوں پہ مجھے شیخ صاحب ایک بات بتائیں، یہ بہت اچھا، میں خود بھی سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی زیادہ گھٹن ہے سوسائٹی میں، اتنی پریشانیاں، دکھ، مہنگائی، بیکاری، بے روزگاری جو ہم روز بولتے ہیں، اس میں اگر لوگوں کو ایک تفریح ملتی ہے تو ملنی چاہیے، لیکن مل جل کر ہم انشور کیوں نہیں کر سکتے کہ ایسی ڈور بننی بند ہو جائے جو قاتل؟ دیکھیں یہی ہمارا مطالبہ ہے جو آپ کا مطالبہ ہے، نہیں، مطالبہ کس سے کر رہے ہیں آپ؟ گورنمنٹ سے۔ گورنمنٹ کیا کرے؟ ہر کام گورنمنٹ کرے؟ حکومت نہیں کنٹرول کرنا، حکومت نے کنٹرول کرنا ہے نا، ہم تو نہیں کر سکتے ایک چیز۔ نہیں، بات سنیں، حکومت ہر شخص کو کنٹرول نہیں کرتی۔ نہیں، گڈی جو ڈور بناتے ہیں ان کو تو کنٹرول کر سکتے ہیں نا آپ۔ کو لوگوں کے اپنے اندر کوئی ضمیر، کوئی اویئرنیس کی آپ مہم چلائیں، کوئی لوگوں کو بتائیں، کوئی پروپیگنڈا کریں، کوئی سیمینارز کریں، کوئی واکس کریں۔ یہ ہمیں ٹائم تو دیے نا، یہ آپ کے پاس پورا سال پڑا ہوا ہے۔ کوئی نہیں سنتا ہماری جناب۔ نہیں، آپ بسنت کے موسم میں اب میں نے آگے پیچھے آپ نہیں بولتے۔ میں نے نومبر برا نہ منائے، میں ایک بات کروں گا، جی جی، آپ بالکل بات کریں گے، آپ کی اجازت سے بولوں گا۔ بالکل بالکل آپ بولے۔ گزارش میری یہ ہے کہ وہ جو ابھی ابرار صاحب کہہ رہے تھے کہ جیسے برسات میں مینڈک نکلتے ہیں جی، بسنت کے ارد گرد، ہم آ جاتے تو ہیں۔ آپ لوگ بڑے یہ ایکٹیو پرابلم نظر شروع ہو آتے ہیں۔ جاتا ہے۔ یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے نومبر کے اپلائی کیا ہوا ہے بسنت کے لیے، نومبر کے مہینے میں، تو میں نے کل ہی کیا، 8 دن پہلے نہیں کیا، اس لیے کیا تھا کہ اس میں جو پرابلم ہے اس کو ختم کرے۔ ڈی سی او صاحب سے ہماری مذاکرات ہوں، میں اس دوران 1-2 بار گیا، انہوں نے کہا یار ابھی بہت ٹائم ہے، واٹ کین وی ڈو۔ سنیں، مجھے نہیں پتا اس میں کون قصوروار ہے، لیکن ایک بات ہے، دونوں یہ قصوروار لوگ ہیں، ہیں، اتنے دونوں قصوروار، خوبصورت، دو قصور اتنے خوبصورت تہوار، اتنے خونی تہوار خونی مناتے ہیں، اور اس کا تدارک کریں نا۔ اور میں یہ آپ کو بات کلیئر کر دوں کہ جو موٹی ڈور بنی تھی، بڑا گڈا بنا تھا،
ये ऑन रिक्वायर्ड गवर्नमेंट की बना था। वो कैसे? 2002 में सिटी गवर्नमेंट ये ने, कोई ऐसा फैशन तो नहीं है कि हम हर मलबा गवर्नमेंट पे नहीं डाल? मैं वही बात बता रहा हूँ, आप जरा एक्सप्लेन करने दो ना मुझे। अच्छा प्लीज, खबरदार हो कोई ना बोले। हाँ कोई ना बोले। उन्होंने कहा जी जो आदमी बड़ा गुड्डा बनाएगा ना उसको नाम दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। ये मियां आमिर सिटी महमूद गवर्नमेंट नहीं, मियां आमिर महमूद साहब की बात। जी, जी, जी। मियां साहब तो यार डे वन से मुझे पता है शेख साहब। सर ये बात अगर वो ना हो कभी हम भी- अपना क्लेम छोड़ देंगे। आप अगर इस एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, ठीक, जी जी आप तो पूरे चेयरमैन हैं, जरदारी साहब तो सिर्फ को चेयरमैन हैं, आप माशाल्लाह पूरे चेयरमैन हैं। किस कैपेसिटी में हैं यहाँ? आप पतंगबाज हैं, आप पतंग साज हैं, आप तमाशाई हैं, आप डोर बनाते हैं। हमें हमें शौक था पतंगबाजी का जी, अच्छा, वो भी छिड़ गया, वो भी छीन गया। वो भी छिड़ गया। मेरी हमदर्दियां आपके साथ। वैसे शेख साहब मुझे ये बताएं, ये नहीं, पतंगबाजी जो है, पतंगबाजी के शौकीन होने की वजह से आप इस एसोसिएशन के चेयरमैन हैं? जी बिल्कुल, इस प्रोफेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं? प्रोफेशनल में भी था जब ये ओके था। नहीं, वो क्या? वो डोर वगैरह, धागा वगैरह, पतंग वगैरह, दुकान छोटी सी। इसका मतलब है वो सारी वारदात आपने शुरू की या आपके कबीले? जाहिर है हमारे कबीले ने किया, को बाहर से तो नहीं आया ना। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो फिर उनको पकड़े ना आप। हम तो कहते हैं गवर्नमेंट हमारे साथ हो, हम आप पकड़ते हैं। देखें, आप घर के भेदी हैं, आपको पता होगा कौन कौन बंदा क्या किस किस हरकत का कौन सी मुलव्वस डोर है। बेच रहा है? असल भाई यही तो हम कह रहे हैं कि पहले तो डोर का साइज मुकर्रर हो, इससे ऊपर डोर नहीं जानी। ठीक है, अगर उससे ऊपर कोई जाए तो फिर हम पकड़ते हैं, फिर हमें आप आजमा के देख रहे हैं हम पकड़ते हैं नहीं पकड़ते। इस बार आपको क्या होता नजर आ रहा है? हमारा शुरू से मौक़िफ़ है कि जो कानून हमें गुंजाइश देता है पहले उसको अवेल करना हमारा हक है। उसको अवेल करना हमारा हक मैंने है। कहा पता नहीं, आपने कहा कि 350 दिन पाबंदी रहती है, हमने कभी इसकी रद्द नहीं की। इन्होंने बताया बड़ी कि अच्छी पंजाब बात, असेंबली ने बिल पास किया होगा। बड़ी अच्छी बात की आपने। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहते हैं? तुम आ गए हो, नूर आ गए। मैं तो उनको कह रहा था, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आए बैठे। ये शेख सलीम साहब हैं, अल्लाह का शुक्र। काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के चेयरमैन है। इनका तारुफ गुज़ार है। गाड़ी सिद्धार साहब ने माशाल्लाह, अल्लाह में और तरक्की दे इनको। बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। मैं पूछा था शेख साहब से कि ये जो गुड्डी फरोशी का जो रोजगार है, इससे कितने तकरीबन लोग मुंसलिक हैं? ये इससे तकरीबन लाखों लोग मुंसलिक हो चुके हैं नहीं। अच्छा। और ज्यादातर जो तादाद है ना वो गरीब आदमियों की है। हाँ जी, वो छोटी सी दुकान में जो गुड्डियाँ छोटे बेचते हैं। छोटे बनाने वाले भी और बेचने वाले भी। एक गुड्डी आपको नजर आती है ना, उसके पीछे 12-13 हाथ अपना रिजल्ट ले रहे हैं। बिल्कुल सही। और अभी मुझे एक फोन आया था, हमारे एक गरीब साथी है, वो बेचारा इसी कश्म में है कि बसंत हो रही है नहीं हो रही, वो इस वक्त हॉस्पिटल में है, हार्ट अटैक हुआ है, शदीद तरीन हार्ट अटैक है। ज़ाहिर उसका रोजगार है, उसका बेचारा रोजगार है, उसकी आस थी चार पैसे आ होएगी, जाएंगे। मेरे पैसे हैं, मैंने ये काम करना है, वो करना है, और कुछ नहीं करना था, उसने अपना खर्चा तो डालना था। नहीं, शेख साहब, इसका मतलब है कि लाखों में लोग जी लाखों में नहीं, ये बेरोजगारी पहले इंतहा पे है, पहले ये भी इंतहा पे बेरोजगार है। हो गए। वही तो हम कह रहे हैं। वही बात है ना कि अब लोगों के बच्चे मार रहे हो आप बताएं। अगर स्टेट कोई भी मुमलकत, कोई भी हुकूमत अगर किसी इंसान की रोजी को रोकती है किसी ऐसी सोशल वजह से जिसके लिए जरूरी होता है उसको रोकना, तो फिर स्टेट को प्रोवाइड भी करना चाहिए उसी मुतबादिल उसका सब। अदरवाइज तो देखेंगे स्टेट तो माँ की तरह होनी चाहिए। ये हमारी स्टेट ऐसी है, बस थोड़ा इजाफा कर लें, सौतेली माँ। और मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे तो ये लगता है कि अगर हम जाएं स्पेशली ये जो थाईलैंड है या जापान है या चाइना, आपको तो आप बहुत ट्रैवल करते हैं, इन इलाकों में भी काइट फ्लाइंग होती है और उसके लिए बड़े बड़े मैदान मुख्तस किए जाते हैं और लोग वहां जाया करते हैं। एक और खूबसूरत तजवीज है। बहुत अच्छी मुझे भी खानदान जाते लोगों ने पूरे। कभी शहर ये से जो बाहर- बात कह रहे हैं, जी जी इस नुक्ता नजर से कभी देखा है कि नहीं? जी, एक हमने- मसले का ये भी हल हो सकता है। स्पोर्ट है ना बड़ी जी। अच्छी तजवीज़ है जी। हमने 4 साल पहले यही तजवीज़ दी हुई है कि हमको लाहौर शहर के 4 जोनों में तकसीम कर दे, जिसने काइट फ्लाइंग करनी है रेगुलर वो वहाँ चला जाए, वहाँ मोटी डोर नहीं उड़ेगी, जो डोर गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, जो स्पेसिफाइड डोर होगी, जो पतंग का साइज होगा वही उड़ेगी। नहीं सिटी में ही होगी ना। नहीं आप नहीं सिटी में नहीं कह रहे जी, जैसे रायमंड का खुला इलाका है, वही बात कर रहे हैं ना, जो जवाब कर रहे हैं। जल्लू मोड़ का खुला इलाका है, ठीक है। गुलशाह है, हाँ ठीक है ठीक। बेदिया रोड है, डिफेंस पाकिस्तान है, जहाँ
खुला मैदान है, ये बात तो माकूल है। वहां हमें भेज दे तो इसमें क्या मजाक है, लोगों का रिजल्ट भी बचेगा। और ये जो बच्चे हैं, सबसे पहले हमारे ही बच्चे हैं, जो लोग फिरते हैं कौन है यहाँ, हमें से है ना, तो कौन आदमी चाहता है ऐसा शदीद और होना। शेख साहब मुझे एक बात की हैरानगी है हसन साहब, ये गुड्डी उड़ाने में काफी पैसे खर्च होते हैं, आप शेख होके गुड्डी की हिमायत करते हैं, बड़ी अजीब बात है। से ये नहीं, उनके बात भाई है, देखे ना शेखों के वैसे ही बदनाम किए हुए आपने। उनका कारोबार भी तो है। शेख जितना पहले खाते थे, कौन खाता था, शेखों के देखे थे सारे मसाले ये बन जो गए हैं। तजवीज़ है, जी ये मैंने तो पहली दफा हमने रिटर्न दी हुई है सर। नहीं, इसके ऊपर वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, रिएक्ट नहीं करी गवर्नमेंट। आप वाली बात के वो मेंढक वाली बात बसंत में निकल आते हैं, सारा साल हमें कोई नहीं पूछता, 5 साल हो गया, हम चक्कर लगा के थक जाते हैं। अभी राणा साहब ने कमेटी का ऐलान किया था, राणा बनाएंगे, राणा सलाम वजीर हुकूमत साहब जी, अच्छा, कमेटी बनाने का ऐलान किया था, 8 दिन हुए हैं, कोई पेशरफ नहीं हुई। वो उन्होंने कुछ नहीं करना, आप मियाँ शहबाज साहब को मिले, उनको शौक है वो गुड्डी मिले उड़ाने तो का। सही ना जनाब, हमें वो टाइम तो दे, वो इस राया को समझे ना, वो उनको एक अच्छी सी गुड्डी- टोली राया ना शुरू आप करें। ऐसा करें ना, एक अच्छी सी पतंग बना के मियाँ साहब को पेश करके सारे को जरा उड़ाएं। हम पतंग वाले उनको दे देते, वो फिर उड़ाने बनवा ले। नहीं नहीं, वो उन पतंगों पे उनका इंतखाबी निशान अगर आप बनाए, मेरा ख्याल है फिर आपको इजाजत। हमें इजाजत मिले, हम सब कुछ करने को तैयार है जनाब। वो इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि राया जो है, रियासत जो है एक माँ है, इनकी आपस की चपलकश हो जाती है, सियासी मियाँ बीवी की लड़ाई है, औलाद को नुकसान हो जाता है। बहुत खूबसूरत बात की है। हाँ जी, हम कहाँ जाए, खूबसूरत, किससे बड़ी शिकवा नाजुक करें, किससे गिला करें हम? बीवी की लड़ाई में नुकसान उन बच्चों का होता है जो पार्टी ही नहीं होती। पार्टी नहीं होते। मैं तो ये समझता हूँ कि अपर के वानों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, मसाइल हो रहे हैं, फिर आपस में हजारों के अंदर हो रहे हैं, तो मैं देखता हूँ कि यार ये तो बड़ी मुसीबत है। लेकिन कुछ अर्से के बाद मैं देखता हूँ सारे आपस में मिल रहे हैं। लेकिन इन दोनों सूरत हालों में मैं हैरान इस बात पे होता हूँ कि गरीब आदमी उस तरह ही गरीब होता है, भूखा उसी तरह भूखा होता है, बीमार को उसी तरह दवाई नहीं मिल रही होती। उन इश्यूज के साथ आम आदमी का ताल्लुक ही नहीं होता, कि नहीं है। कि ऊपर लड़ाई है या सुलह है, उससे कोई ताल्लुक नहीं, ट्रांसलेट ही नहीं होती वो। जिनको इश्यूज बना के पेश किया जाता है, वो दरअसल चंद 100 या चंद हजार लोगों का मामला होता है। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे ये 18 करोड़ पे मुसल्लत कर देते हैं। अच्छा, आप देखें वैसे बहुत सारे पेशे और बहुत सारे हमारा रिवायात कल्चर के हवाले से वो बहुत बुरी तरह खत्म नहीं होते, बहुत सारे प्रोफेशन। मैं तो समझता हूँ जी कि ये दौर जो है ये बहुत गिर गया है असल में। ये अब इसमें इतनी सख्त नहीं है इकोनॉमीज के अंदर, ये लोगों को जो है वो इतनी बड़ी जो है ना वो तबकाती जदोजहद है लोगों के अंदर, इतनी ज्यादा पैसे की दौड़ भी कोई जरूरत से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और अब मुझे लगता है कि आर्ट जो है ना जी वो सेंसिटिव चीज होती है। आर्ट स्पेशली जिसको हम कहते हैं कि डाई आउट कर रहा है, अगर कोई एक आदमी ये देख रहा है कि मेरे मुल्क के अंदर जब मैं सड़क पे निकलता हूँ तो लोग जानवरों की तरह फिर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि जिंदगी में क्या करना है, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, उनके पास दवाई के पैसे नहीं है, फिर मैं कहूँगा ठीक। तो वो इनसेंसिटिव हो के अपनी जिंदगी गुजार रहा है, तो मुझे बताएं कि वो आर्ट किस तरह अच्छे दिल के साथ करेगा। अगर वो आदमी आर्टिस्ट बन जाए तो वो कितना को आर्ट उसके अंदर आएगा जो कि प्योरिटी ऑफ इमोशंस के साथ आता है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो बेचारा ना तमाशाई बन सकता है ना आर्टिस्ट बन सकता हाँ है। जी, वो नहीं बन सकता। इसीलिए कहते हैं कि वो पुराने जमाने में जो आर्टिस्ट थे, हाँ जी। वो जो इतने बड़े लोग थे, अब वो नहीं हो रहे एक्चुअली। इसीलिए नहीं हो रहे इसीलिए नहीं हो क्योंकि वो सेंसिटिविटी का लेवल ही नहीं है। मैं नहीं आप समझता। किसी भी फील्ड में देख लें, हाँ जी, अब आपको कोई फैज पाइपलाइन में भी, कोई फैज, सवाल ही फराज, नहीं। कोई अहमदुद्दीन कासमी, जहीर काश्मीरी, कोई नासिर मुनीर कासमी, नियाज़ी, कोई फलाना, कोई मुनीर आप नियाज़ी, मेरी बात आपको देखें जी, मैं सिंगर्स। जवाद अहमद एक मशहूर आदमी पाकिस्तान में गाने गाता है, मुझे बताया कि मेहदी हसन साहब का मेरा को मुकाबला है, वो तो ऐसे है जैसे मैं उनको टच भी नहीं कर सकता। जब मैं उनको सुनता हूँ तो मेरे आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं। तो वो लोग जो थे वो एक खास दौर की पैदावार हर शोबे में थे, ट्रेनिंग थी, पेटर्नेज थी, बड़ा कुछ था, अदारे भी उनको पेटर्नाइज कर रहे थे। अब ये है कि वो जो सही लोग हैं उनको ही कह के फारिग कर देते हैं कि यार इसकी तो शक्ल ही ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो टीवी पे वीडियो बनाएगा तो अच्छा नहीं आता। अब उसे वीडियो बननी है। हाँ, वीडियो बननी है, और ये तो लोअर क्लास का आदमी लगता है। तो आप मुझे बताएं कौन से पाकिस्तान के आर्टिस्ट थे जो कि बादशाहों के बच्चे थे? हाँ, वो सारे के सारे मिडिल क्लास के थे। तो उन लोगों को ऊपर लेके आएगा तो वो आपको बताएंगे ना कि हमें क्या आता है। तो इसलिए बड़ी ये जो है ना, मैं तो समझता हूँ कि गरीब आदमी का म्यूजिक करना पाकिस्तान में खत्म हो गया है। मैं बिल्कुल बरमला ही कहता हूँ आपको कि ये कैंसर ज़ियाउल हक, जनरल ज़ियाउल हक के जमाने में शुरू हुआ।
पानी खत्म हो गया है। सुनो पानी की पुकार, प्यासा है पाकिस्तान। अपनी फिल्म से लेके अपने अदर आर्ट्स तक मैं समझता हूं कि ये कैंसर ज़ियाउल हक, जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में शुरू हुआ। हाँ जी, बिल्कुल सही कह खास रहे हैं। तरह की मुनाफकत, जी डबल स्टैंडर्ड्स, आर्ट्स को, फाइन आर्ट्स को, क्रिएटिविटी को डिस्करेज करना, इसका सफर जो है वो ज़ियाउल हक के ज़माने में शुरू हुआ और 11 साल में अपने पीक पे चला गया। ऐसे ही ठीक कह रहे हो। इतना विजन नहीं था कि जी ये जो न्यूज़ कास्टर बैठेगी वो दोटा लेके बैठेगी। जी हाँ, विजन की बात है ना, आज कहाँ है वो सारा कुछ? नहीं है, यानी आप सिर्फ एक ड्रामा कर रहे हैं ज़ाहिर पे जा और रहे हैं। एक ऐसे मजहब के नाम पे तख्लीक की इंतहा है। जी जी बिल्कुल ठीक है। मुसलमान से ज्यादा बड़ा तख्लीक का क्रिएटिव माइंड किसी का क्या हो सकता है, लेकिन उसी के नाम पे उन्होंने तख्लीक का सत्यानाश कर दिया। आज सारे आर्ट्स आपके बेशुमार कुछ पेशेदा, आज हमने बुलाया है महमूदा गाजिया हैं, आर्ट्स काउंसिल की डायरेक्टर, शायरा भी हैं, अदीब भी हैं, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स की वो डायरेक्टर हैं। तो मैंने कहा कि उनसे ज़रा ये गपशप की जाए कि बेशुमार जो आर्ट्स हैं हमारे और बेशुमार जो प्रोफेशंस हैं हमारे, वो किस तरह फेड आउट होके किधर चले गए हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कॉन्स्टेंटली ऐसा हो रहा है। क्या आप कहते हैं लाखों लोग इन्वॉल्व है, निकले आप बाहर बाहर बेचारे, इस मैंने बताया शोर शूट डालेंगे तो सुनी जाएगी यार, आखिर में वैल्यू है उसी की को वैल्यू है, अदरवाइज तो पूछता ही अगर ये यही जबान समझ तो ये भी हो जाएगा। ये करके दिखाए ना तो फिर गरीब मजा आएगा। तबका है कि वो बेचारा खुदकशी कर लेता है। मैंने आपको बताया ना, अगर खुदा ना था ना होया तो आपको इनाम में आ जाएगा। कितनी खुदकशी होंगी, कितनी फाकशी होंगी, कितनी शादियां रुकेंगी। जो साल में लोगों ने बच्चों की शादियां रखी हुई है ना, कि बसंत होगी, ये फसल की तरह था कि सारा साल फसल बोते हैं और काटते हैं, उसका निजाम चलता है। बिल्कुल सही। बाकी बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने क्या मसले के लिए मैं बुलाया। आपके साथ मिलके वैसे ही बड़ा मजा है। चलो इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। मैं ज्यादा चाहता हूँ आप सिर्फ 5-4 घंटे बैठे हैं, उसमें सॉरी वाली कौन सी बात? आई कहाँ से हो ये भी तो देखें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपका मसला हल करे, हमारी जो दुआ है। ये मुझे बताएं कि ये जो बहुत सारे हमारे आर्ट्स और प्रोफेशंस गायब हो रहे हैं, इसका कोई हुकूमती सतह पे कोई नोटिस वोटिस लिया है कभी किसी ने? मसलन किस किस्म के? बेशुमार डाइंग आर्ट्स हैं, बेशुमार आपकी स्किल्स या क्राफ्ट्स कह लें आप। सीरियस ड्रामा गायब हो गया, वो भी नहीं है। थिएटर चला था, उसका भी सत्यानाश हो गया। हमारे यहाँ जब तो आप कह रहे थे सिंगिंग का बहुत बुरा हाल है। बहुत हो रहा हाँ है जी एक्सपेरिमेंटल जी, और कमर्शियल कम है इस्लामाबाद में इस्लामाबाद में। जी। और एक्चुअल जो नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स है, उसका जो ऑडिटोरियम है, लास्ट ईयर एक बहुत, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ड्रामा फेस्टिवल है, जो 40 दिन सरकारी खाते को छोड़े आप नहीं, आवाम की बात सरकारी करें। का लोकल था। नहीं, लोकल वो सारी पैट्रनेज थी या कोऑर्डिनेट सरकार के साथ किया हुआ? हाँ, सरकार कोऑर्डिनेट हाँ, जाहिर तो है। सरकार तो जहाँ हुकूमत है लेकिन- वहाँ नहुसत है। मैं पहले देखिए किसी हसन और साहब, सिलसिले में- जहाँ रोटी कपड़े का मसला हो, वहाँ कमर्शलिज्म तो आपको पता ही ज़्यादा आता है। और एक्सपेरिमेंटल थिएटर हो या जैसे पुराने ज़माने का था, आगाशा के ज़माने से अब तक, उसमें आपको नहीं, आप देखें सिंगिंग, वो तो बहुत ज्यादा मतलब अवामी तरीन चीज आर्ट है ना। यस, ठीक है, जिसमें जब से हमने होश संभाला है, मतलब जो हीरोज थे पॉपुलर तरीन, उनमें हमारे सिंगर्स। हाँ जी तो अभी आप जो कह रहे थे वो काइंडली जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन हाँ जी। करें। मैं तो ये कह रहा हूँ जी कि देखिए पाकिस्तान में स्पोर्ट्समैन और उसके बाद जो हमारी जो सीनियर्स की एक लॉट थी, इनको इनके साथ लोग आइडेंटिफाई करते थे, सबको मालूम है, बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई करते थे। बिल्कुल। अब वो इन लोगों ने बहुत अच्छा एफ्लुएंट टाइम भी देखा है, बहुत से लोगों ने देखा है, नुसरत अली खान साहब, अताउल्लाह खिलवी साहब, फिर हमारे ज़माने में बहुत से हमारे कंटेम्प्रेरीज हैं जिन्होंने बहुत अच्छा टाइम देखा। अब लेकिन ये हालात है कि शोज इवेंट्स होना बंद हो गए हमें। कॉर्पोरेट्स के बाद तो रिसेशन थी, उसके बाद ये जो आपको पता है जो बॉम्ब्स का, धमाकों का मसला है, तो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से किसी को एनओसी नहीं मिलता,
तो इवेंट्स ही नहीं होते, इवेंट्स नहीं होते तो जो रोजी होती है आर्टिस्ट की डायरेक्ट, वो सिर्फ और सिर्फ इधर से होती है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर 10-15 लोग हम जो इस तरह के लोग हैं जो एस्टैब्लिश्ड हैं, उनको निकाल दिया जाए, जो कि कोई और चीज में ढूंढ सकते हैं, चलो ये नहीं तो ये कर लिया, वो नहीं तो वो कर लिया, थोड़ा बहुत सरप्लस जमा किया हुआ, उसके अलावा जो अच्छे भले रिनाउंड आर्टिस्ट हैं वो इस वक्त अपने बैंकों से पैसे निकाल के खर्चा कर रहे हैं अपना, क्योंकि कुछ ही नहीं है उनके पास, मतलब अपना रिजर्व खा रहे हैं, बेसिक रिजर्व खा रहे हैं। प्रोग्राम देखिए इतना बड़ा इवेंट होता था जो ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, वो इस दफा इतनी छोटी सी बुझी सी हुई है कि उसको पता भी नहीं चला। मुसव्वरी देख लें, असलम कमाल वो जो पेंट करते थे फैज साहब को, और खास तौर पे इकबाल को, जी जी, उनको भी उन्होंने कहा है कि जी ये ओवर एज हो गए हैं, इतनी एक्सटेंशंस मिल चुकी हैं, हाँ, अब नहीं देनी तुम भी जाओ जरा घर जाओ आराम करो। फनकार की हालांकि extension क्या? फनकार का जब तक हाथ चल रहा है, हाँ, या पेंटर का, या वो गा रहा है या उसका उसकी तो कोई उम्र की कैद उसकी नहीं उम्र की होती। कैद नहीं, नहीं उसकी उम्र की कैद नहीं होती, और वो इतना बुरा वक्त इस और मुल्क फन में- जो है वो निखरता है नहीं, इस उम्र के मुल्क साथ। में ये बताएं ना, आप लोग ये आर्ट्स काउंसिलें वगैरह चलाते हैं, तो कभी आपने सोचा है कि ये जो इतना बुरा वक्त आया हुआ है, ये लीडिंग सिंगर हैं हमारे जो सिंगिंग जैसी, जो बहुत ही अवामी, मुसव्वरी में तो चले एलीट या खास तरह के लोग, बड़े मुंतखब लोग इंटरेस्ट लेते हैं मुसव्वरी में, पेंटिंग्स में, ठीक, सिंगिंग तो इट्स एवरीबॉडीज पैशन, ठीक। बिल्कुल है सर। तो साहब मसला ये वो है हालत कि जब इसमें आप आर्ट क्या कर रहे काउंसिल्स की आप बात करते हैं या इदारों की बात करते हैं, तो उसकी फंडिंग भी तो देखिए ना, उसका बजट कहाँ से मिलता है? प्रोग्रामिंग का कोई बजट नहीं होता। नहीं तो फिर करते क्या है आप लोग, पैकअप करें। बैकअप ही है ना, मगर ये कि यहाँ से अमूमन ये होता है, कोशिश होती है कि कहीं से स्पॉन्सर करके कहीं से उसको थोड़ा सा जिंदा रखा जाए। आप कहीं इन्वेस्टमेंट दूसरी जगह कर सकते हैं, लेकिन आर्ट पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता। हाँ जी, और पहले जो होता था मल्टी मीडिया, गवर्नमेंट से कोई फंड नहीं होते, गवर्नमेंट के फंड, तो इनकी तनख्वाहें वगैरह होती होंगी, बस फंड्स क्या होने। इसके अलावा नहीं। अगर साहब बॉटम लाइन तो ये है कि जिस मुल्क में भूख का, रोटी का, इलाज का मसला हो, उस मुल्क के अंदर आर्ट के अंदर कौन पैसे डालेगा और किस तरह वो चलेगा। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि ग्लोबल कल्चर जो है वो इनफरादी कल्चर्स को निगल रहा है। ऐसे ही आप देखें एक ही तरह के लिबास, बच्चे हमारे वो पिज्जा खाने लग गए हैं, बर्गर खाने लगे हैं, बर्गर खाने लग गए घर के हैं, खाने जबान को वही पसंद है, नहीं मौसीकी एक तरह की है। तो इस बात के क्या इम्कानात आप देखते हो कि आहिस्ता आहिस्ता ये सारा कुछ एक ही रंग में रंगा जाएगा, और ये जो इनफरादी कल्चर्स थे, पंजाब का कल्चर है जी, ये सिंध का कल्चर है, या इस हिंदुस्तान की या श्रीलंकन या व्हाटएवर की, या अरब कल्चर है, ये सारा कुछ खत्म होके जम हो जाएगा ग्लोबल कल्चर। ये देखिए जी, कुछ हद तक तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो चीज़ें जब मर्ज करती हैं तो नई चीज़ें, नई शेप्स, नई फॉर्म्स बनती हैं, लेकिन मैं इसको इस तरह देखूंगा जिस तरह आप देखेंगे ब्लैक जो कलर होता है वो सारे कलर्स जज्ब कर लेता है, और वाइट जो होता है वो सारों को रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब बाउंस बैक कर देता है। लेकिन कोसे गजा जो होती है उसमें सारे रंग नजर आते हैं, होते भी इकट्ठे हैं। अगर कोसे गजा वाला रेनबो जैसा मर्जिंग हो तो बड़ी खूबसूरत बात होती है, वो मजा। अपना अपना कलर नजर आता है, और वो उस वक्त होती है जब बराबरी की बुनियाद पे कल्चर एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं। इस तरह अगर एक ऊपर से कल्चर आके कहते कि मैं ही हूँ और आप सब जो बौने हैं, तो फिर बेड़ा गर्क हो मैं जाता है। आपकी बात का करूंगी कि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है उसकी जो तफरीक है, तो आपने अभी बर्गर और पिज़्ज़ाज और उस नस्ल की बात की है, वो एक ख़ास क्लास है जो एक ख़ास सिस्टम में पढ़ रही है। अभी हमारे यहाँ परफॉर्मिंग में जो बच्चे आते हैं, जो एलीट क्लास अलग है, Performing arts में जो बच्चे आते हैं, और लोअर जो तबका है उसको तो जो कच्ची बस्ती है या छोटे स्कूल है या जो प्राइवेट है या जिनकी फीस 200-300 है, उसको तो कोई सामने लाता ही नहीं। अब इस वक्त जब एलीट क्लास के आप प्रोग्राम देखेंगे तो आपको कहीं से नहीं लगेगा ये पाकिस्तान के प्रोग्राम है। हम जैसे मुल्क तो भी बेचारे क्रॉल कर रहे हैं, हमें तो समझ ही नहीं आ जी, रही जी। कि मिड टर्म होना है कि टर्म पूरी होनी है। बिल्कुल ठीक है। हम तो बेसिक्स पे फंसे हुए Ad hoc- हाँ। चाइना बहुत बड़ी मिसाल है। वहाँ की नई नस्ल अंग्रेजी बोलने की क्रेजी है, खत्म बात होगी। जीन्स पहन रही है, वही मशरूबात पी रही है, वही खाने खा रही है जो बेसिकली वेस्टर्न है। तो मैं जिस खदशे का इजहार, मेरा सवाल और था, आप कहीं और निकल गई हैं कि बुनियादी तौर पे ऐसा तो नहीं
کہ ویسٹرن کلچر اپنی طاقت اور سپیریورٹی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے جی. باقی سب کو نگل رہا ہے. سوال نکل یہ چکا ہے جہاں پہ نگل چکا اور برگر پہنچ جائے گا اس کا کلچر خود بخود. امریکن جو کلچر ہے وہ بیسیکلی کارپوریٹ کلچر ہے. اس نے پوری دنیا کے جتنے انڈیجنس کلچر جتنے تھے نا ان کو افیکٹ کیا ہے. ختم تو سب کو نہیں کر سکا کیونکہ ہماری تو سویلائزیشن بڑی پرانی ہے, تو ہم ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں آپ ادھر یہ مٹی والا بھی بیٹھا ہوا ہے ابھی تک, یہ بھی شان ہے اللہ کی. لیکن آہستہ آہستہ اگر یہ نکل رہا ہے اور یہ افیکٹ کر رہا ہے اس بری طرح کہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ہمارے پاس جتنی ہیریٹیج تھی وہ تو سب فضول تھی. یہی اصل چیز ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. نہیں, اس میں حکومتوں کا رول کتنا ہے اور انڈیویجولز کا؟ نہیں, اگر آپ ورثے کو محفوظ کرنے کی بات کرتے ہیں تو اسلام آباد کا لوگ ورثہ, آپ نے نیا جو میوزیم ہے یقیناً دیکھا ہوگا, اس میں ہر وہ چیز پرزرو کی گئی ہے. کیا میوزیم مطلب کہانی تو ختم ہو گئی نا. یس, نہیں, اس کے علاوہ ختم نہیں ہوا. اس کے علاوہ ابھی بھی وہ چترال کا اور دوسرے مختلف جگہوں کے جو ہے وہ ثقافت پیش کی جاتی ہے. اور ہماری کوشش ہوتی ہے, میں خود بچوں کے پروگرام کرتی ہوں, یوتھ کا پروگرام کرتی ہوں, میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی باہر کا گانا نہ گانے دوں, اپنی ثقافت کو پروموٹ کروں. آپ ہمارے کوئی بھی پروگرام آتے ہیں, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے. جب ہم پاکستانیت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ویسٹ سے تھوڑا سا اپنے آپ کو علیحدہ کریں. ہم علیحدہ کرنا شروع کرتے تھے انڈیا سے. میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں, ہماری جو فلم انڈسٹری ہے جو تباہ ہوئی ہے, بڑی بات ہے. ہماری فلم انڈسٹری تباہ ہو گئی. لوگوں کو یہ بات ہضم بھی نہ ہو. ہاں جی, آپ دیکھیں نا, انڈیا اتنی بڑی مارکیٹ ہے, پاکستان کی فلم انڈسٹری ختم ہو رہی ہے, اور یہ اس طرح کھڑی ہونا تقریباً مشکل ترین کام ہے. اگر یہ انڈیا کی مارکیٹ کو نہیں کریں گے, ٹارگٹ کریں گے, اور اس کے ساتھ مل کے کوئی جسے کہتے ہیں نا کولیبریٹو ایفرٹ نہیں کریں گے, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ سنیما آپ کا تباہ ہو چکا ہے اور یہ بالکل ختم ہو جائے گا. میوزک آپ کے آرٹسٹ وہاں جا کے گا رہے ہیں تو تھوڑا بہت پھر بھی ریوائیو کیا گیا ہے. ادروائز یہاں کے جو آرٹسٹ صرف یہاں پہ لوکل تھے, ان کی اب ایلبمز نہیں بکتی. یہاں پہ اس وقت آپ کو پتا ہے راحت فتح علی خان اور عاطف جو ہیں, جو پاکستانی سنگرز انڈیا سے گا رہے ہیں, کیونکہ ان کا اتنا بڑا میڈیا ہے, وہ پوری دنیا پہ وہ رول کر رہے ہیں اس وقت. ہالی ووڈ سے زیادہ فلمیں وہ پروڈیوس کرتے ہیں. تو وہ لوگ ہمارے ہی پاکستانی آرٹسٹ, میں تو بڑا فخر کرتا ہوں, وہ پوری دنیا میں مشہور ہو رہے ہیں. ہمیں یہ ان چیز سے باہر آنا چاہیے. ہمیں انڈیا کے ساتھ مل کے کلچرل ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے, اور اس پورے خطے کو اپنا کلچر, ان کا کلچر ہمیں ملا کے ایسٹرن کلچر کے طور پہ دنیا کو دینا چاہیے. اسی میں ہمارا بزنس بھی ہوگا, اسی میں ہماری ٹریڈ بھی ہوگی, اسی میں ہمارا آرٹ بھی فلرش کرے گا. ادروائز مجھے نہیں کوئی وہی نظر آتا.